हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, इमरजेंस ऑफ द रीजनल स्टेट इन इंडिया 12th टू द 18th सेंचुरी। यानी देखा जाए तो 11वां चैप्टर जो है भारत में प्रदेशी राज्य का उदय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो एनआईएस में पढ़ते हों, चाहे सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो, उनके लिए भी ये चैप्टर कई मानने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें जो है हम 12वीं सेंचुरी से लेके जो है 18th सेंचुरी के विषय में विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, the Brahmani Sultanate. There is the most important their chapter of emergence of regional state in India and 12th and 18th century. There is the most important here. In the 14th century, two powerful kingdoms arose in the South India. One was there is a Brahmani Sultanate, and the second kingdom was the Vijayanagar Empire that ruled for a 300 years. In these sections we will be discussed the history of Brahmani Sultanate and it is the administrative feature. The Deccan region was the part of the provisional administration of the Delhi Sultanate. In order to establish a stable administration in the Deccan, the Muhammad bin Tughlaq appointed the Amiran a Sada and Sada Zamir, who were to administrate it to head of the 100 villages. For 1337, the conflict between two officers in the Deccan and Delhi Sultanate and accelerated. This led to the establishment of independent state in the Deccan in the 1347, with the capital as the Gulbarga in the Andhra Pradesh. It is a founder of Haran Kangus and assumed there is a title Alauddin Shah Bahman Shah as the trace his descent from the magically hero of iron Brahman Shah, and the kingdom was named after him. There is a Brahmani Sultanate. After the Muhammad bin Tughlaq, where were no is attempt by there is a Delhi Sultanate to the control the Deccan region. Therefore, the Brahman is the sultans with there is the out any check the exit to the kingdom. One of the important acquisitions and was the control over the Dovals and the important port of the West Coast. Under the Brahman Shah and his son Muhammad Shah, their administrative system was well organized. The kingdom was divided into the 4 administrative units called to the Taraf or province. These provinces were to the Daulatbad, the Bihadar and the various to the Gulbarga. And the Muhammad I first is the defeated their Vijayanagar kingdom, and consequently his Golconda was the next to the Brahmanes kingdom. Every province was the under a trefolders who has the call to the subduer, and some land is converted into the Khalsa. The land from their dedication of the Terrafather is a Khalsa is a land was the pieces of the land which is used to the run expansion of the king and the royal household. Further is the service and the salary of the every noble was fixed, and those noble who is kept of 500 horse were given to the is a 10 lakh hoons is annually. There is a most important
If the shot of the stipulated to the troops at the Terraforders is would be have to be reimbursed is the amount of the central government. The noble used to get their salary either in the cash or from to grant of the land and Jagir. Brahman is the ruler is dependent for the military support on his Amir. And there were two groups in the rank of the Amirs. One was the Christians who were immigrant and the Muslim and had to be into the staying for the long time in the Deccan region. The other group was the Africans as a Paradesis who had to recently come from Central Asia, Iran, Iraq, and had to selected in the Deccan region. Recently, between to both this group, there was a way to the tension to the appropriate of the better administration position. Because of their feathers, their stability of the Brahmin Sultanate was affected. For the first time in India, is both this kingdom used to the gunpowder in the warfare. The Brahmins were already familiar with the use of the firearms, and they employed to the Turkish and Portuguese is the expert to the train to the soldier in the latest weaponry of the warfare. One of the most important personality in the Brahminic kingdom was the Mahmud Gawan. And the Mahmud Gawan's as the earlier life is obscure. He was on the ironics by birth and first reached the Deccan as a trader. He was granted this title of chief of the merchant of Malik Ut-Tuzar by the Brahmin's ruler. The Humayun saw there is a sudden to the death of the Humayun led by the coronation of the minor son Ahmad III. And a regency of counseling was set from their administration and Ahmad Gawans was its important member. He was the made of Wazir of the Prime Minister and was given to the title of Khwazu-e-Jahan. This is history of Brahminic kingdom after the period of actually their record of the achievement of the Mahmud Gawan. Depth there began on the upper quell. He was liberal and wanted is a compromise between two Africans and the Deccan. He controlled the kingdom in a efficient is a manner and provided it the stability. The Gawan is a conquered their Vijayanagar territories up to the Kochi. On the western coast, Goa and the Bowls were acquired to the losing. This is an important port was a great loss for Vijayanagar. Brahmini strengthened it is a trading relation with the Iran and Iraq after the gaining of control over to Goa and is a Dawal. The Govanas carried out many internal is a reform and attempt to the put on the end to be strive in their nobility. In order to the curb their military power of Terraforders is a governed order that is only 1/4 of there is each province was to be under the direct control of the provisional of the Terraforders. The remaining 4 of the provinces were to the place under a Kuladar or commander of the forts. The Kuladar was appointed by the central government and however soon after the death, the governor declared there is independence and the Brahmin's kingdom broke up. In the 15th and 16th centuries, some Amiras is a Bidha, is a Ahmednagar, is a Golconda, is a Vijaypur, and the Vera established to independence Sultanate of the years over to form it to new state. And this were to the Nizam Shahis of the Ahmednagar, the Abdul Shahis of Vijaypur, the Kotab Sahib of the Golconda, and the Ilam is a science the bearer, and the barriers is a science of the Bidar. They formed the legals of state and the strengthened them by the maternal alliance. They maintaining their traditional rivals with the Vijayanagar rulers. Golconda and Vijaypura entered into the maternal alliance and led to the battle of the Talikota against the Vijayanagar. They finally is a assembled where the Mughal armies. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है ब्राह्मणी सल्तनत। देखिए ये जो है हमारा चैप्टर भारत में प्रादेशिक राज्य का उदय के अंतर्गत आया है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है
और उसमें हमें ब्राह्मणी सल्तनत के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का हमें मौका मिला है। कहते हैं 14वीं सदी में दक्षिण भारत में दो बहुत ही शक्तिशाली राज्यों का उद्भव हुआ। एक था ब्राह्मणी सल्तनत और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य, जिसमें 300 वर्ष तक शासन किया। कहते हैं 300 वर्ष कम नहीं होते हैं शासन करने के लिए। और इस भाग में हम ब्राह्मणी सल्तनत के इतिहास और उसकी प्रशासनिक विशेषताओं पर जो है विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मणी सल्तनत की कैसे उत्पत्ति हुई और इसकी क्या विशेषताओं के साथ आगे बढ़ा। कहते हैं दक्कन क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन का एक भाग था और दक्कन में स्थित प्रशासन स्थापित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीरन एक सादा अमीर नियुक्त किए गए जो 100 गाँवों के मुखिया हुआ करते थे। और 1337 के बाद से दक्कन के अधिकारों और दक्कन के सल्तनत में संघर्ष बहुत बढ़ गए थे और इसके परिणाम स्वरूप 1347 में दक्कन में आंध्र प्रदेश की राजधानी गुलबर्गा के साथ एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी हुआ। इसके स्थापक जो हैरन कांगू ने जो अलाउद्दीन हसन वहमन शाह की उपाधि ग्रहण की, क्योंकि वह अपने पूर्वज ईरान के पौराणिक नायक बहमन शाह को मानते थे और उसके नाम पर अपने साम्राज्य का नाम उन्होंने बहमनी सल्तनत भी रखा। ठीक है, ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि इसकी जो है उत्पत्ति कैसे हुआ। तो आप समझ सकते हो कि इसके स्थापक जो हैरन कांगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि ग्रहण की, क्योंकि वह अपने पूर्वज ईरान के पौराणिक नायक बहमन शाह को मानते थे और उसी के नाम पर उन्होंने साम्राज्य का नाम भी बहमनी सल्तनत रखा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो स्थापक जो है हैरन कांगू ने अलाउद्दीन हसन बहन शाह की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात इसका नामकरण जो है अपनी जो है नायक के रूप में इसको किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दक्कन क्षेत्र के नियंत्रण करने के लिए दिल्ली सल्तनत द्वारा कोई भी कोशिश नहीं की गई, इसलिए बहमनी सुल्तानों ने बिना किसी की दखलंदाजी के अपने साम्राज्य के नए क्षेत्र जोड़ लिए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिग्रहण था, कहते द लोभ पर नियंत्रण पाना, जो पश्चिम समुद्री तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। कहते हैं बहमन शाह और उसके पुत्र मोहम्मद शाह के अधीन प्रशासनिक पद्धति बहुत ही व्यवस्थित थी। साम्राज्य के 4 प्रशासकीय इकाई बांटा गया था और जिन्हें तरफ या प्रांत किया कहा करते थे। ये प्रांत थे दौलताबाद, वीदर, बरार और जो गुलबर्ग। मोहम्मद प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य को हराया और उसके परिणाम स्वरूप गोलकुंडा को जो है बहनी साम्राज्य में शामिल भी किया। हर प्रांत एक तरफदार की अधीन था, जिसे सूबेदार कहते थे। तरफदारों के अधिकार में से जो है जमीन के कुछ हिस्सों को जो है खालिस जमीन के रूप में तब्दील किया गया था। खाली जमीन का वह टुकड़ा था जिसका इस्तेमाल राजा या उसके शाह घर बार के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त हर कुलीन के काम और वेतन निश्चित किया गया था। जिन कुलीनों के पास जो होता था 500 घोड़े होते थे, उन्हें जो है 10,000 ऊन वार्षिक दिए जाते थे, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। यदि निर्धारित टुकड़ियों को कम टुकड़ियाँ होती थी तो जो है तरफदारों को केंद्रीय सरकार को इस धन की पूर्ति करनी पड़ती थी। कुलीनों को अपना वेतन जो है नगद या भूमि या जागीर के रूप में मिलता था और बहमनी शासक सैनिक सहायता के लिए अपने अमीरों पर जो है निर्भर हुआ करते थे। अमीरों के श्रेणी में 2 समूह हुआ करते थे। एक समूह था दक्कनी लोगों का, जो कि अप्रवासी मुसलमान थे और बहुत लंबे समय से दक्कन प्रदेश में निवास कर रहे थे। दूसरा समूह था अफ्कियों या परदेशियों का था, जो हाल ही में मध्य एशिया, ईरान और इराक में आए थे और कुछ समय पहले ही दक्कन क्षेत्र में बसे थे। इन दोनों समूहों में हमेशा बेहतर प्रशासनिक स्थिति हासिल करने के लिए आपस में तनाव बना रहता था। इसके आपसी कलह का असर बहमनी सल्तनत की जो है स्थिरता पर भी पड़ा और भारत में पहली बार इन दोनों साम्राज्यों ने युद्ध में जो है बारूद का इस्तेमाल किया था। बहमनी पहले से ही अग्नेय अस्त्रों से वाकिफ थे और उन्होंने सिपाहियों को आधुनिक अस्त्र और युद्ध कौशल की प्रशिक्षण के लिए तुर्की और जो है पुर्तगाली विशेषज्ञों को नियुक्त भी किया। बहमनी साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था महमूद गावा। कहते हैं महमूद गावा के आरंभिक जीवन के बारे में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं है
वह जन्म से ईरानी था और दक्कन में पहले एक व्यापारी के रूप में आया था। बेनमी शासक हुमायूं शाह ने उसे सौदागरों की मुखिया या मलिक उत तुज्जर की उपाधि प्रदान की थी। हुमायूं की अचानक मृत्यु के वजह से उसके छोटे पुत्र अहमद द्वितीय का राज्य अभिषेक हुआ। प्रशासन के कार्य के लिए एक दरबारी परिषद गठित की गई और महमूद गावा उस परिषद का महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। उसे वजीर या प्रधानमंत्री बनाया गया और ख्वाजिश-ए-जहान की उपाधि भी दी गई। और इस अवधि के बाद का बहनमी साम्राज्य का इतिहास असल में महमूद गावा की उपलब्धियों का दस्तावेज माना जाता है। खुद एक अफाकी होने के बावजूद वो बहुत ही उदार था और अफाकियों और दक्कनियों में समझौता करवाना चाहता था और उसने बहुत ही कुशलता से साम्राज्य को नियंत्रित भी किया। यह काफ़ी उसकी कूटनीतियों का परिचय था। इसे स्थिरता प्रदान की गई और गांव ने कांची तक विजयनगर के सभी प्रदेशों को जीत भी लिया। पश्चिम समुद्री तट पर गोवा और दलेव को भी जीत लिया गया और इन प्रमुख के बंदरगाहों को खोना विजयनगर के लिए भारी नुकसानदेह साबित भी हुआ। और गोवा और दलेव पर नियंत्रण पाने के बाद बैदवी ने ईरान और इराक के साथ अपने व्यापारिक संबंध भी काफ़ी हद तक मजबूत किया। गांव ने अनेक आंतरिक सुधार किए गए और कुलीनों में परस्पर हो रही लड़ाइयों को ख़त्म करने का प्रयास भी किया गया। गांव ने आदेश जारी किया कि प्रांतीय तरफदार के सीधे नियंत्रण के अधीन प्रत्येक प्रांत में केवल एक ही किला तरफदार के अधीन रहेगा ताकि उनकी सैनिक शक्ति को कम किया जा सके। प्रांत के बाकी किलों को किलादार या कमांडर के अधीन रखा गया। किलादार की नियुक्तियां केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी, परंतु उसकी मृत्यु के तुरंत बाद सूबेदारों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित स्वयं ही कर दी और बहनमी साम्राज्य बिखर सा गया। कहते हैं 15वीं और 16वीं सदी में सदा अमीरों ने बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और विजयपुर व बरार में अपनी निजी स्वतंत्रता सल्तनत स्थापित कर ली और इस प्रकार नए प्रदेशों का उदय हुआ। और यह सल्तनत थी अहमदनगर की निज़ाम शाही, बीजापुर की आसिफ शाही और गोलकुंडा और कुतुब शाही, बरान की इमन दशाही और बिदर की बरीफ शाही। इन सब ने मिलकर प्रदेशों का संगठन भी बना लिया और वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसे और भी मजबूत बनाया। देखिए, पुराने समय में ये बात काफ़ी प्रचलित थी कि वैवाहिक संबंध बना के कोई भी राजा होता था अपने शासन को मजबूत और दृढ़ बनाता था। ऐसा ही गोलकुंडा में किया गया, जहाँ पर ब्राह्मणी साम्राज्य था बनाने के लिए किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जहाँ पर वैवाहिक संबंध को काफ़ी आगे बढ़ाया गया। इन्होंने विजयनगर के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी कायम रखी, यानी देखा जाए तो इसने विजयनगर के साथ दुश्मनी बरकरार रखी और गोलकुंडा और विजयपुर ने आपस में वैवाहिक संबंध बनाए और उन्हें विजयनगर के खिलाफ तलीकोट की लड़ाई की अगुवाई भी की गई। अंत में इन्हें मुगल सेनाओं के समक्ष हार मान ली। तो कहते हैं मुगल साम्राज्य ने इनको तहस नहस करके रख दिया, लेकिन ये भी थे काफ़ी डट के मुगल साम्राज्य के हमलों का इन्होंने सामना किया, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके पश्चात हम आगे करेंगे विजयनगर करेंगे और उसके स्थापना से लेकर उसके विघटन के हर एक बात पे विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके हित में होगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च
स्टडी को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।